This time we get you the Reporters Project from the state of Himachal Pradesh, which is reeling under the worst natural calamity the state has ever seen. Hundreds of lives being lost, thousands of lives being affected. We are here to deep dive into as to why this state is witnessing such natural calamity. Were the environmental causes put on stake to actually carry out the developmental work, or the governments in past and in present have negated the most important aspect of the state, the topography of the state, while carrying out the developmental work? We're also here to understand as to how the people's lives are being affected, and will it make changes in their political choices looking at the current situation. Death, destruction, devastation all around. Incessant rains have taken a toll on Himachal Pradesh. Landslides, cloudbursts and flash floods have cost lives and livelihood in the hill state. Well, I don't need to say much about the kind of destruction which has happened in Himachal Pradesh. You can see all around me, this is what had happened on the 13th of August when a particular cloudburst took place here in Mandi, and in fact this is the Zukain Panchayat area which has been worst affected by the flash floods which occurred and washed away many homes. This is the trail of destruction which has left behind now, and this in particular happened on the morning of 13th of August when a cloudburst took place on the upper hill area, and after that the water gushed in with so much speed that it washed away whatever it had in its way. Still, there is a lot of damage which is still here, and this entire panchayat has been vacated, and in fact now this is the red zone area. No one from outside is actually allowed to enter this space. There were two homes which were seriously affected by this very flash flood which occurred on the 13th of August. Now, this was the very home which was in the passageway of this entire flash flood, and you can see how bad situation is. Today is the third day, and still there are a lot of stones which are present inside, there are a lot of mud which is present inside, and these are all locals and the family members who are actually helping each other in actually carrying out this operation of emptying this space, because right now this entire home is also standing on a cracked lantern, if we can say, and in fact because of that this entire home and this entire space becomes very risky for anyone to even stand. And just imagine if these people are carrying out this operation on themselves. This is also very heart-wrenching. When we spoke to the locals over here, the family who's been affected by this, they say no help has been given by the authorities as of now. No NDRF team, SDRF team, local police has came to this very spot. I would also want to take you to that side of this very area where you can see that this very home has also been affected, and in fact the locals say and the residents of this home say there are cracks in this home, and that's why this entire area has been vacated. These homes are prone as of now to probably a disaster which nobody had imagined. They say there are rains on and off, though an alert by IMD has also been issued. There are small kids who have been affected. You can see the kind of life these people are living over here. This is the saddest state of affairs which we can tell to our viewers that how the bad situation is. One of the biggest tragedies that the state has witnessed this monsoon is in the Summer Hill area of Shimla. A landslide struck a temple packed with devotees, leaving more than 20 dead.
This is the Summer Hill area. You can see the sort of destruction which has been done due to the flash floods over here. In fact, the NDRF teams are down there working continuously to actually cull out the extra debris from here. And in fact, up there is the advanced study area from where this entire flash floods began. And in fact, you can see the level of destruction over here. And in fact, only looking at these visuals, you can imagine the kind of pressure from which the debris and the water came from above till down to the temple. You can see the level of destruction which these rains have caused in this very area. This is a very famous Shiv Mandir here in this very particular region, and in fact you can see the trail of destruction from up above this very place, where you can see the water started coming in from that very area. And in fact then the pressure and the current of the water was so high that it washed away this entire piece of land. You can see over here, this was actually a concrete road which was connecting these two areas, but as of now there is just rubble. And in fact this is the trail of destruction which has been left behind after those flash floods, and in fact also because of the cloud burst. While climate change has played its part, make no mistake, this is also a man-made tragedy. Rampant construction in the form of road widening, tunnels, hotels, and even hydropower projects. Building norms and rules have been flouted with impunity in order to cater to the growing number of visitors making a beeline for Himachal Pradesh. So what is your assessment? What do you think is contributing towards this sort of situation in Himachal Pradesh? Namaskar. Main reason is excessive rains actually. We know that due to global warming, actually rain patterns they have changed actually. कुछ जगह जहाँ ड्राई था वहाँ रेंज बढ़ गई हैं, कुछ जगह जहाँ रेंज होती हैं वहाँ थोड़ा सा रेंज घट गई हैं. बट दी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स इन हिमाचल प्रदेश वेयर एक्सेसिव रेन इवेंट्स दे हैव इंक्रीज्ड एक्चुअली, कि कुछ जगह बारिश ज़्यादा पड़ रही है और एक्सेसिव पड़ रही है, कुछ जगह थोड़ी कम पड़ रही है. और ऐसे भी अगर हम IMD का डेटा देखें इन द मंथ जो कि जुलाई मंथ का है उनका, उसमें हम लोगों को लगता है कि हिमाचल में पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेंज हुई हैं. और मैं कहीं देख रहा था कि अभी तक जो है 1901 से लेके 2023 तक जो है उस डेटा को अगर हम एनालाइज करते हैं, वी कैन सी दैट दी रेंज ड्यूरिंग दी year 2023 is the second highest rainfall in the state of Himachal Pradesh. तो रेनफॉल जो है ये एक मेन मुद्दा है. क्लाइमेट चेंज भी उसमें एक जो है एक अहम भूमिका निभा रहा है. क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये निगेट की गई? आई डोंट थिंक एक्चुअली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को निगेट किया गया हो. जैसे कि हम देखते हैं कि हिमाचल में 4 लेन्स का काम जो है बड़ी तेज़ी से चला हुआ है. तो हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं लैंडस्लाइड्स के, दे आर अराउंड दोज नेशनल हाईवेज और द 4 लेन्स. तो हम लोगों को लग रहा है कि वो स्पीड जो है उन लैंडस्लाइड्स की जो हम लोगों को ज़्यादा दिख रही है वो वहाँ से ज़्यादा दिख रही है. दूसरा थोड़ा सा एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंक्रीट्स लग रहा है कि वो भी थोड़ा सा उसमें आया है कहीं ना कहीं पिक्चर में. अदरवाइज रेंज जो है, एक्सेसिव रेंज जो है और एक्सेसिव इवेंट्स एट सर्टेन पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा बड़ा रीज़न है एज़ कम्पेयर टू मैन मेड रीजन्स. सर आपका मतलब ये कहना है कि सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क्स ही एक कारण नहीं है हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आने का, बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो मैन मेड प्रोजेक्ट्स लाना हो, डेवलपमेंटल को फास्ट करना हो, ये सारे मिलजुल के एक प्लेटर परोसते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस वजह से ये सब चीज़ें फेस कर रहा है. बिल्कुल 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 सही बात है जी. अगर हम ऐसे चलेंगे किसी चीज़ पे, हम अगर मान लो किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ते हैं. इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट हो, एक्सेसिव रेंज हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, उस सब चीज़ें जुड़ के जो है ये एक जो हम लोगों को दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये फ्लैश फ्लड्स हुए हैं या लैंडस्लाइड्स हुए हैं. Ironically, all this now has spelled disaster for the state's tourism industry. As rains wreak havoc, tourists are staying away from Himachal Pradesh. ये आपदा आई है तो अब
कैसा बिजनेस चल रहा है अब फिलहाल? अब तो सर बिल्कुल ज़ीरो पे नील ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि आपको रोड की कंडीशन पता ही है, रोड वगैरह बिल्कुल टूट गया है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 महीने वैसे ही वेट करना पड़ेगा अभी हमें। तो इस सब से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपका बड़ा होटल है, बहुत सारे लोग स्टाफ भी होंगे, मजबूरी में आके क्या निकालना भी पड़ रहा है कुछ लोगों नहीं को? नहीं, ऐसा तो चलो कोई डिसीजन नहीं है मैनेजमेंट का, पर एक्सपेंसेस तो आप समझ ही सकते हो, एक्सपेंसेस होटल के डेली बेसिस पे भी नहीं कवर हो रहे, तो ये चीज़ है। तो लार्जली अगर देखा जाए तो जो आपकी होटल, रेस्टोरेंट, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, ये इसका काफ़ी बुरा प्रभाव है, मतलब इन बारिशों का और इन सब चीज़ों का। बिल्कुल, ओवरऑल ही पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट है इसका। क्या कुछ ऐसा कुछ चाहेंगे कि सरकार की तरफ से मदद मिले? ये तो डेफिनेटली रिबेट, उसमें टैक्स वगैरह में रिबेट कर दे, कोई और चीज़ एक्सपेंसेस जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कर सकते हो, डेफिनेटली हम चाहेंगे और इसके रिगार्डिंग बात भी करेंगे। Locals here bank heavily on the tourism industry, which contributes to 7.5% of the state's GDP. With little to no business happening, they're struggling to make their ends meet. इस बाढ़ की वजह से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, मतलब कम ज़्यादा वैसा ही क्या? बहुत कम, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर के वजह से टूरिस्ट बाहर से भी नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा बाबू जी, आप एक बात और बता रहे थे कि जैसे आपकी एक मैं थोड़ा शौक था ये सुन के कि जितनी भी प्राइम्स आप चला रहे हैं सब लाइसेंस्ड भी हैं, मतलब सरकार के अधीन रह के आप सब ये काम कर रहे हैं। तो आपकी अगर अच्छा आपके कार्ड भी बने हुए हैं, अगर अच्छा बिल्कुल पूरा एकदम सब चीज़ें मतलब उस हिसाब से चल रही है, सिस्टम के हिसाब से चल रही हैं। मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मल समय पे जब टूरिस्ट होते थे कितना कमा लेते थे और अब कितना कमा पा रहे हैं? नॉर्मल तो सर ऐसा है जो नॉर्मल समय में कमा लेते हैं 3,000 कमा लेते हैं महीने का। 3,000 नॉर्मल पे अभी तो सर रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। गुजारा भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक हमने ऐसा समय देखा नहीं, कभी नहीं। हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक हमें शिमला में ऐसा समय देखा कितने नहीं। समय से हैं शिमला में आप? हम हमारे को हो गए सर 20 साल, और इस लाइसेंस बढ़ के हो गया हमारे को 10 साल। जब लाइसेंस बने हमारे ये फ्रेम के तो जी अच्छा, आप बताइए, मैं काफ़ी चीज़ें समझा कि मतलब पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, सब चीज़ें हैं। अभी जो है वो बाबूजी बोल रहे हैं कि रोटी खाने की भी दिक्कत है, इतनी तकलीफ है। ये तसलियत है सर, समय ऐसा इस वक्त बारिश नहीं रुक रही है, बाहर से कस्टमर भी कैसे आएगा, रोड भी सारे ब्लॉक हैं, तो अब लोगों को डर लग रहा है। अब इस वजह से हमारा बिजनेस भी रुक गया है, बार लोगों को और कमाई कुमाई का तो धंधा छोड़ो। तो ये है कि भाई 100-200 तो बनता तब भी अच्छा था, 100-200 में भी नहीं बन रहा। अब 100-200 रुपया भी नहीं बन रहा है, तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं अपना? अब जो कमाएगा सर वो खा रहे अभी, बाकी क्या करें। ऐसा कभी हालात पहले कभी देखे हैं आपने? देखो जी, हमारे ज़िंदगी में इतने साल हो गए, मैं 56 साल का हो गया, तो 10-15 दिन भी बारिश होती थी, पर जिस हिसाब से इस बारी जो हुआ नुकसान, ऐसा कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। बहुत सारे लैंडस्लाइड, बिल्डिंगें गिर गई, सारे रास्ते बंद हैं। तकरीबन इस टाइम ऑल ओवर शिमला में कोई भी पैदल चलने का रास्ता भी ठीक नहीं है, गाड़ियों का तो तकरीबन बंद है, पैदल भी नहीं चल सकते हैं लोग, तो इतनी बुरी हाल है। और हमारे भी काम पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट से बिना हमारे को काम नहीं है। लोकल लोग तो अपना घर से खा पी के आते हैं, तो मेरे पास भी 2-3 एम्प्लॉइज़ हैं, उनका भी खर्चा यहीं से कर रहा हूँ, सब कुछ खाना भी उनका चल रहा है, अपना भी, तो उतना ज़्यादा काम नहीं है। आसान भाषा में जैसे अगर किसी को समझाई जाए बात, अगर आज से जब अच्छे साल में अगर आप 100 रुपये का धंधा करते थे या 100 रुपये का काम होता तो अब कितने का काम हो रहा है? मतलब इस टाइम जो है तो कोई 10-15% काम है सारा ही। तो अगर पहले 100 का होता तो अब 10 या 15 रुपये का काम। 15 रुपए का काम है, उनको काम नहीं है खास कुछ भी। तो कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग भी हैं आपके पास, मैं देख रहा हूँ शेफ्स भी हैं, सब हैं। ऐसा ही है, अब कर रहे हैं, अब क्या, अब इनको भी मैं निकाल नहीं सकता, इन्होंने भी बेचारों ने कहाँ से कमाना है, कमाए तो यहीं से रहे हैं, यहीं से खाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं चलो अभी बंद है, कुछ दिन बाद काम चलेगा तो करेंगे कुछ। As Himachal Pradesh crumbles with each passing day, politics over who's responsible is not far behind. The opposition BJP claims people are suffering due to the mistakes made by the ruling Congress. अब अगर बात की जाए, अब ज़रूरी ये भी जानना है कि इसके कारण क्या रहे।
बहुत से लोगों का कहना है जो डेवलपमेंटल वर्क हिमाचल प्रदेश में किया गया दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो उनका भी ये कहना है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आए वो उन सब की एक उन सबके साथ मिलजुल के जो एक परोसा जा रहा है इस एनवायरमेंट के अंदर, वो ये अब एनवायरमेंट वापसी दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। डेवलपमेंट भी होनी है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज करके, नुकसान करके हम आगे प्रगति की हम अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस हमको करना ही पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र कारण। बहुत जगह हमने ऐसा भी देखा जहां बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जहां कभी भी लैंडस्लाइड हुआ ही नहीं है, ना वहाँ पर सड़क बनी है, ना कोई प्रोजेक्ट बना है, लेकिन उसके बावजूद बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो मैसिव लैंडस्लाइड से वहाँ पर गांव बर्बाद हो गए। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इस चीज़ ने भी किया कि जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ चीज़ों की एहतियात हमको बरतनी पड़ेगी। आने वाले समय में जो डैमेजेस हो उससे सबक सीखना चाहिए, खास तौर से जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है। और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ कनेक्टिविटी का माध्यम मात्र एक है, वो सड़क है। सड़क के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ट्रेन की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, बाई एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ले दे करके सड़कें बनाते हैं गांव को जोड़ने के लिए। तो ऐसे में जहाँ सड़कें बनी हैं, सुविधा की दृष्टि से वो भी एक आवश्यक एस्पेक्ट है जहाँ उसको होना है। लेकिन उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद उसका जो हम फॉर्मेशन कटिंग के बाद जो डेब्रिज होती हैं, जो मलबा होता है, उसको प्रॉपरली डंपिंग साइट पे पहुंचाना, वहाँ जाकर के उसको रखना, वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और इस बार हमने देखा कि बहुत जगह जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसमें जहाँ रोड्स के प्रोजेक्ट बने हैं, उसके कारण भी डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। सर, इन मुद्दों पे ज़्यादातर राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, लेकिन कुछ कॉर्नर से बयान आते हैं। आप क्या समझते हैं? सुक्खू साहब ने भी एक बात बोली थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स हे वायर में हुए, इस वजह से भी ये आपदा देखी जा रही है। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये अभी अभी आज ही प्रोजेक्ट बने हैं। प्रोजेक्ट कई वर्षों से, जहाँ लार्जी प्रोजेक्ट हमारा बिजली का प्रोजेक्ट है और उसको बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया, और उस प्रोजेक्ट में 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल तबाह हो गया, फिलहाल बंद हो गया है, शटडाउन है आज की तारीख में, क्योंकि पानी उसके अंदर, गाद इसके अंदर घुस गई है। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि बहुत सारे वर्षों से ये प्रोसेस चला था जहां हमने लापरवाही की है, और आज वो पीढ़ियों को भुगतनी पड़ रही है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। कंस्ट्रक्शन हैफाजत तरीके से होना, और उसके बाद हम इस बात को नहीं देखते हैं कि यहाँ जहाँ हम घर बना रहे हैं, यहाँ की मिट्टी जो है इतना स्ट्रक्चर का लोड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब आगे के लिए मुझे लगता है कि सबक सीखना चाहिए। आगे के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमको करनी पड़ेंगी, तब जा कर के हिमाचल प्रदेश में हम अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। It's a big test for Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu, who up until 8 months ago didn't have any administrative experience. सर, मैं मंडी की स्थिति के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी फिलहाल शिमला में जो हालात दिख रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी करके आए, ज़्यादातर सामान्य दिख रहे हैं। कुछ एक दो जगह से मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मंडी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंडी में ब्यास नदी उफान पर है, खड नाले उफान पर है। ब्यास नदी कोई मंडी से नहीं है, ये हमीरपुर कांगड़ा में है, और अभी कांगड़ा में पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, तो हमारा इंदौरा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का एरिया भी पानी में डूबा है। इवैक्यूएशन के लिए हमने हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार है, और जो मिलिट्री इंजीनियर के इंजीनियर हैं उनको भी हमने तैयार रखा है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। समस्या ये है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक ये कार्य करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, पर पूरी स्थिति सामान्य है। और जो लैंडस्लाइड है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला रोड को हमने खोल दिया है,
लेकिन जो थोड़े और जो पंचायतों में सड़कें बह गई हैं, बागवानों के सेब को मंडियों तक पहुंचाना है, वो हमारे पास अभी टास्क है, उसको हम युद्ध स्तर पर पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा, सेंटर से किसी तरह की आपसे बात हो रही है? आप क्या होम मिनिस्टर के कांटेक्ट में हैं अभी? नहीं, सेंटर से मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई है, उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने जल्दी से केंद्रीय टीम भी भेजी है। केंद्रीय की दूसरी टीम भी आके सर्वे करके गई है और हमें आशा है कि जल्दी ही हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त माननीय देश के प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी जारी करेंगे। More than 300 dead and counting, and unimaginable damage due to floods. How much of this will be a factor when Himachal Pradesh votes in the Lok Sabha elections next year? This is the lapse of both the citizens and as well as the government also. तब तक किसी ने जान पहचान नहीं करी, जैसे जिसको नक्शा का पास कराना था करा लिया, कभी अपनी सॉइल की जांच नहीं कराई, कभी अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराई, क्या मैं यहाँ बहुमंजिल बिल्डिंग बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। मैं अपने आप को भी दोषी मान सकता हूँ, बट ये हम लोगों की गलती है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। जो लोग चीज़ और अगली बार आप जब वोट डालने जाएंगे, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, आपके दिमाग में इस त्रासदी का पूरा मंजर रहेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। किन लोगों ने इस मुसीबत में साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ खड़े रहे, और हम चुनेंगे उसी प्रतिनिधि को जो सच में शिमला के देशवासियों के लिए, शिमला के लोगों के लिए काम करेगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो बना दिए हुए हैं घर, जितनी मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे मतलब 3-4 टाइम्स ज़्यादा ही है। सो मेरे को वही लगता है कि हाँ, लोगों ने हर कहीं घर बना दिए हुए हैं जहाँ पे ज़रूरत भी ना हो। सर देखो, इसमें पॉलिटिक्स का तो कोई इशू नहीं है, वोट तो आदमी अपनी समझ से ही डालेगा। सपोज करो वोट लोग डालने गए हैं, तो ऐसी चीज़ों को देखकर सर ये तो एक आपदा हुई है हिमाचल प्रदेश में। मैं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कुछ ऐसी आपदा में हमारे लिए कोई सा बजट लाए हिमाचल सरकार के लिए, हम मानते इस बात को। अगर हम ऐसी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं अभी हिमाचल के वासी, कि ये ऊपर वाला है, हम जानते हैं। Do you think this tragedy will be in the mind of people when they'll be going to vote? It can be the main reason also, because as a I think resident, I am also thinking that if nothing has been done by the government, and somewhere I think most of the time we can say that the people are responsible for this thing. Because if I'm talking about myself, I'm also, I can say, selfish, because I also want to have a proper house in Shimla and it should be that much stories and all. So we, instead of blaming the government, we should be more responsible as a citizen. As we travel through many districts of Himachal Pradesh, including Shimla and Mandi, one thing is clear, that the state is kneeling before the nature. The locals and the experts believe that this is because of overburdening of the hill state. Well, the politicians blame each other for the menace in the state, but as of now, there is no substantial solution to the situation in the state. Well, the experts also say that the past governments and the present government had indulged in just political blame game but had not looked at a long-term solution. One thing is also clear, that the way forward is sustainable development and nothing else. This is Yash Goel with video journalist Rama Shankar for CNN News 18 in Shimla.